new channel Professor Academy. Today we are going to start chapter Light, Reflection and Refraction of class 10th. So firstly, the main heading is the light. So firstly we are here to learn about the light. Light is a form of energy which enable us to see. लाइट एक ऐसी एनर्जी है, ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से हम सब कुछ सारे ऑब्जेक्ट्स को प्रॉपरली देख सकते हैं. लाइट एक ऐसी एनर्जी विच एनेबल अस टू सी. सो नाउ नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट. लाइट is an electromagnetic wave. It does not require any medium. जो भी electromagnetic waves होती हैं उनको कोई भी medium required नहीं होता travel करने के लिए, because electromagnetic waves can travel in a vacuum. Second is light tends to travel in a straight line. Light हमेशा किसमें travel करती है? Always in a straight line. It has a dual nature. Light की dual nature होती है, particle nature भी होती है और wave nature भी होती है. Next one is सोर्स ऑफ लाइट कॉस्ट शेडो. कैसे? जैसे हम सोर्स हमारा ये पड़ा है और जिस साइड सोर्स पड़ा है उसके ऑपोजिट साइड हमारी क्या बनती है? हमेशा शेडो बनती है. नेक्स्ट इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सो नोट डाउन दिस that speed of light in vacuum is 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड. So next point is when light falls on a surface. जब भी light surface के ऊपर fall करती है तो हमारे पास दो methods आते हैं. That is first is known as reflection, other is known as refraction. Reflection कैसे होती है? जब हमारे पास सरफेस क्या होती है? शाइनी होती है, तब हमारे पास क्या होती है? रिफ्लेक्शन होती है. जब हमारे पास, हम बोल सकते हैं, जब हमारे पास एक स्मूथ सरफेस है, जैसे लाइट इंसिडेंट करेगी लाइट क्या कर जाएगी? रिफ्लेक्ट कर जाएगी. दिस इज नोन एज अ रिफ्लेक्शन. एंड रिफ्लेक्शन कब होती है? जब हमारे पास कोई भी सरफेस क्या होती है? ट्रांसपेरेंट होती है, जिसके आर पार हम लोग देख सकते हैं. ठीक है, जैसे हमारे पास ये एक सरफेस है, this is the transparent surface. Light will incident and light will transmit through this surface. This process is known as the refraction. Next definition is luminous objects. Luminous objects are those which emit their own light. Sun, lamp, etc. जो अपनी लाइट खुद ब खुद emit करते हैं, that are known as the luminous objects. Next is known as the non-luminous objects. Are those which don't emit themselves but reflect the light when falls on them. For example, we have a chair. This is a chair. Okay? So इसके पास खुद की एबिलिटी नहीं है कि लाइट को रिफ्लेक्ट कर पाए. जब इसके ऊपर लाइट क्या करेगी? इंसिडेंट करेगी, तो ये लाइट को क्या कर देगी? रिफ्लेक्ट कर देगी इन सेम डायरेक्शन. ओके, और इन एनी अदर डायरेक्शन. सो जिसके पास खुद के पास प्रॉपर्टी नहीं है अपनी लाइट को मिट करने के लिए, दैट आर नोन एज द नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. नाउ next our topic is the reflection of light. It's very important one. So what do you mean by the reflection? So suppose here we take a mirror. So mirror, from the point any direction, if we incident a light on the mirror, incident direction is A to O. The light will be reflected in the direction O to B. So when light bounce backs after striking a polished surface is called reflection of light. Or another definition, we can say that the process of sending back the light rays which fall on the surface of an object is called reflection. कैसे हो रहा है? Suppose हमने light incident की A to O, ठीक है? O is the point of the incidence और हमारी light reflect हुई in another direction, that is from O to B. यहाँ पे हम example ले सकते हैं. जैसे हमने, ये हमारे पास wall है, this is the wall. यहाँ से हमने बॉल क्या करी? वॉल के ऊपर क्या करी? स्ट्राइक करी, और बॉल यहां से क्या होगी? बाउंस बैक होएगी. दिस इज ऑल्सो द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. दिस इज अ वॉल. इफ अ टेनिस बॉल स्ट्राइक्स ऑन द वॉल, it bounce back in the same direction. This is the example of reflection of light. Now the reflection of light is always maximum on the smooth surfaces. Suppose if we have the smooth surface, very polished surface, so if light incident, it will reflected. If large number of lines are incident, they will be reflected in the same direction. Angle of incidence will be always equals to angle of reflection. But if there is a rough surface, the
there is less reflection like this. So we can say that the objects having the polished surface, जिस ऑब्जेक्ट्स के पास पॉलिश सरफेस है, बिल्कुल रेगुलर सरफेस है, उनकी तो रिफ्लेक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी. बट जिनके पास रेगुलर सरफेस नहीं है उनकी रिफ्लेक्शन क्या होगी, हमारे पास कम होगी. बिकॉज जो इरेगुलर सरफेसेस है, जो अनपॉलिश्ड सरफेसेस है, वो क्या करती हैं, अलग अलग डायरेक्शंस में अपनी क्या कर रही है, रिफ्लेक्शन कर रही हैं. लेकिन जो हमारे पास बिल्कुल स्मूथ सरफेस है, पॉलिश्ड सरफेस है, वो क्या कर रही है, एक ही डायरेक्शन में क्या कर रही है, रिफ्लेक्शन कर रही है. जो स्मूथ सरफेसेस है उनकी सिर्फ वन डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन होगी, लेकिन जो मेरे पास क्या है, अनपॉलिश्ड सरफेस है, उनकी क्या है, डिफरेंट डायरेक्शंस में क्या होंगी, रिफ्लेक्शंस होगी. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. So now next question arises, which metal is one of the best reflector of light? So कौन सी ऐसी मेटल है जो सबसे ज्यादा रिफ्लेक्टर होती है लाइट की? So हम कह सकते हैं कि सिल्वर एक ऐसी मेटल है जो सबसे बेस्ट रिफ्लेक्टर है लाइट की. क्यों? क्योंकि सिल्वर एक ऐसी मेटल है जो एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो क्या करती है, जितनी भी लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट करती है वो सारी की सारी क्या कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है. मान लो हमने क्या लिया, एक पॉलिश्ड ब्लॉक लिया सिल्वर का. ये क्या करेगा, जितनी भी इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट करेगी सारी की सारी लाइट को क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट करेगा. कोई भी लाइट इसमें से ट्रांसमिट नहीं करेगा. बट क्या है, एज सून टाइम, कुछ समय के बाद जो सिल्वर मेटल है इजीली स्क्रैच हो जाता है और इजीली क्या बन जाता है, रफ बन जाता है. सो हम क्या करते हैं, जो घर में हमारे मिरर्स होते हैं ना, ऑर्डिनरी मिरर्स होते हैं जिसमें हम अपनी ड्रेसिंग टेबल्स में हमारे मिरर्स यूज होते हैं, जिसमें हम अपना फेस देखते हैं रेगुलरली. तो ऑर्डिनरी मिरर्स में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, उसके पीछे क्या होती है, एक सिल्वर मेटल होती है, थिन लेयर होती है सिल्वर मेटल की. उसके ऊपर क्या करते हैं, हम रेड पेंट की कोटिंग करते हैं. उसकी वजह से प्रॉपरली क्या होती है, रिफ्लेक्शन होती है और सिल्वर मेटल जल्दी जल्दी क्या होती है, कोरोड और रफ नहीं होती. सो हम कह सकते हैं आर ऑर्डिनरी मिरर्स आर मेड बाय डिपॉजिटिंग अ थिन लेयर ऑफ सिल्वर मेटल ऑन वन साइड ऑफ प्लेन ग्लास शीट. उस सिल्वर लेयर को हम जल्दी से जल्दी वो लेयर खराब ना हो इसलिए हम उसको किससे प्रोटेक्ट करते हैं, रेड पेंट की कोटिंग से प्रोटेक्ट करते हैं. सो रिफ्लेक्शन है लाइट की प्लेन मिरर से टेक्स प्लेस होगी एट द सिल्वर सरफेस. और हमारे पास सपोज हमारे पास एक प्लेन मिरर है, दिस इज अ प्लेन मिरर, दिस इज द फ्रंट साइड ऑफ द प्लेन मिरर, दिस इज अ बैक साइड. हमने भी पढ़ा कि बैक साइड को हम सिल्वर कोटिंग के साथ साथ किससे कवर करते हैं, रेड पेंट से कवर करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो खराब ना हो. बट अगर आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और इसका मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में नोट्स भी डाल दूंगी, आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हो. आप अगर आपको कोई भी टॉपिक प्रॉपरली या कोई भी लाइन अंडरस्टैंड नहीं हो रही, प्रॉपरली नहीं समझ आ रही, ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में डाल देना और आप इस नोट्स के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. थैंक्स.